पिछले वालों को आगे ले आओ ना, खींचने से पहले। नीचे बैठ जाइए, जनजातिकरण हमारी मांग है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत के हम आदिवासी है, हमें अपना हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए। असम में
में जनजाति की दर्जा दो আমার দাবি মানিব লাগিব অসমত আমাক জনজাতি ৰূপে স্বীকৃতি দিয়ক we want scheduling no scheduling no rest no scheduling no rest our demand legal demand our demand legal demand long live ACA we want scheduling no scheduling no rest আমার দাবি রাজ্য দাবি আমার দাবি মানিব লাগিব অসমত আমাক জনজাতি ৰূপে অসমত আমাক জনজাতি ৰূপে जनजातिकरण हमारी मांग है हमारी मांगे पूरी करो भारत के हम आदिवासी हैं हमें अपना हक चाहिए असम में हमें जनजाति की दर्जा दो असम में हमें जनजाति की दर्जा दो we want scheduling no scheduling no rest our demand legal demand we want constitutional rights we want constitutional rights we want constitutional rights we want scheduling we are indigenous people of India we want scheduling Assam we want scheduling in Assam we are indigenous people of India we want scheduling in Assam আমার দাবি রাজ্য দাবি এই দাবি মানিব লাগিব want scheduling no scheduling no rest our demand legal demand we want constitutional rights we want constitutional rights long live ACA आदिवासी काउंसिल जिंदाबाद आदिवासी काउंसिल जिंदाबाद असम आदिवासी काउंसिल जिंदाबाद लॉन्ग लिव आदिवासी काउंसिल असम आदिवासी काउंसिल जिंदाबाद थोड़ा ধৰ্ণা দি আছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগত ধন্যবাদ আগবঢ়ালোঁ। আদিবাসী কাউন্সিলৰ সভাপতি আপোনালোকৰ হৰিমন বাস্কে আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চাইমন চৰেন তেখেতসকলক মই লগ পাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক সম্পৰ্কে অৱগত হৈ আছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত যিখিনি বক্তব্য ৰাখিব লাগে সেইখিনি বক্তব্য ৰাখি আছোঁ। আপোনালোকে জানে ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকৰ চাহ জনজাতিসকলক
যে শিডিউলিঙত শিডিউলিংভুক্ত কৰিব লাগে, জনজাতি তালিকাভুক্ত কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৱাজ তুলিছিলোঁ। আৰু তাৰ পিছতো আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত মই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত গৈ সেনে আমাৰ এই দাবীটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এটা কথা দিছিলে যে তেওঁ এইটো ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী হতুৱাই তেওঁ ইয়াক মানে পৰীক্ষা কৰাই সেনে যথাযথ ব্যৱস্থা ল'ব। কিন্তু দুখৰ কথা, আজিলৈকেও আপোনালোকৰ কোনো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে আজি এই আন্দোলন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আন্দোলনৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে। আপোনালোকৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি আমাৰো সহযোগ আছে, আমিও সমভাগী, আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। আপোনালোকে জানে যেতিয়া আমাৰ আন্দোলন চলি আছিলে, বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে যেতিয়া আন্দোলন চলি আছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ লগত আমাৰ যিটো সদ্ভাৱ বা সাংগঠনিক যিটো সদ্ভাৱ, যিটো ঘনিষ্ঠতা, আমি বড়ো জনজাতিসকলে আপচুসকলে কোনোদিন আপোনালোকক শিডিউলিঙত বা জনজাতি তালিকাভুক্ত হোৱাত কোনোদিন আপত্তি কৰা নাই আৰু আজিও নকৰে। আৰু আপোনালোকৰ এই দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত ৰখাৰ কাৰণে যিমান চেষ্টা কৰিব লাগে আমি চেষ্টা কৰি থাকিম। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব, আপোনালোকৰ মনৰ দৃঢ়তা লাগিব, আপোনালোকৰ আন্দোলন লাগিব। গতিকে মই বেছি ক'ব নোখোজোঁ। মই আপোনালোকৰ এই সংগঠন সম্পৰ্কে বা আপোনালোকৰ ইছ্যু সম্পৰ্কে যিমানখিনি যি কৰিব লাগে মই বাস্কে আৰু চৰেণ ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ লাগি মই সেইখিনি কৰি থাকিম আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰি থাকিম। আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিখিনি আপোনালোকৰ দাঙি ধৰিব লাগে, বক্তব্য দাঙি ধৰিব লাগে, সেইখিনি মই দাঙি ধৰিম বুলি সেনে মই আপোনালোকক কথা দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ এই যাত্ৰাত আপোনালোকে সফল হওক, আপোনালোকৰ এই আন্দোলন কৃতকাৰ্যত হওক, এইখিনিকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম। আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি हम चाहते हैं शेड्यूलिंग আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি। भारत सरकार हमारी मांगे, भारत सरकार हमारी मांगे, हमको जनजाति के अनुसूची में हमको जनजाति के अनुसूची में अंतर्भुक्त करो, हमको जनजाति के अनुसूची में अंतर्भुक्त करो। भारत सरकार हमारी मांगे, हमार दाबी नहीं दाबी हमार दाबी मानिব লাগিব। অসমত আমাক জনজাতি ৰূপে অসমত আমাক জনজাতি ৰূপে আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী আমাৰ দাবী মানিব লাগিব। অসমত আমাক জনজাতি ৰূপে कारण हमारी मांग है, हमारी मांगे पूरी करो। भारत के हम आदिवासी हैं, हमें अपना हक चाहिए। असम में हमें जनजाति की दर्जा दो, असम में हमें जनजाति की दर्जा दो। No scheduling, no rest. We want scheduling. Our demand legal demand. Our demand legal demand. Our demand legal demand. No scheduling, no rest. No scheduling, no rest. We want scheduling.
case of Indian national level. ऐसे आसाम के जितने भी रहने वाले हैं आप लोगों का कि अगर एसटी लिस्ट में तो आ जाता है आसाम में स्पेसिफिकली क्या फायदा होगा? तो अगर जितनी हो जाती है तो कम से कम वो जितनी सुविधाएं दिए जा रहा है गवर्नमेंट तो वो जिसके द्वारा हम लोग जो पीछे पड़े हुए हैं तो एक दो पढ़ लिख के निकालते हैं पर सर्विस वगैरह कोई दूसरा लोन वगैरह मिलता नहीं है जिसके लिए वो मतलब कैसे बड़े हो जाते हैं और उसके नीचे जो होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जब मतलब कि वो तो पढ़ लिखने से भी तो कोई फायदा नहीं है जिसके लिए उन लोग जो नीचे जो पढ़ते हैं उन लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं और विशेष करके वही हम लोग का पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है वो नौकरी नहीं पाने की वजह से कम वो होने से कम शिक्षित जब हो जाएंगे हम लोग का मेजोरिटी तब क्या करने से हम लोग का प्रोग्रेस कर सकते हैं आदिवासी कैसे प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग क्या अपनाना चाहिए वो सब तो आ जाएगा दिमाग में अभी इसलिए नहीं आ रहा है कि हम लोग का शिक्षित आदमी का कम थोड़ा क्या 70% बोल सकते हैं असम में उससे कम भी होगा का भी बहुत बड़ा रोल है जब तक स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप लोग आसाम में भी कुछ करना चाहिए और भी दूसरा डेमोक्रेटिक मेथड से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए कि भाई हम लोग का ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करो ताकि हम लोग भी जाति के लिस्ट में आए तो इस संदर्भ में कुछ अभी तक नहीं किए सर कुछ हुआ नहीं है अभी सर लोग गुवाहाटी को धरना किया है और बहुत बार मेमोरेंडम भी किया हुआ है अभी तक शासन सरकार ने एक हिसाब भेज दिया है जात को इन लोग को गुवाहाटी से भेज दिया इस बार भी अगर यहाँ धरना होने के बजाय इसके होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट की रवैया ऐसे ही रहे तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा काउंसिल की तरफ से क्या यही होगा हम लोग शुरू किया काम तो हम लोग बंद नहीं करेंगे करने से हम लोग का कुछ नहीं होगा आगे बढ़ना ही होगा इसलिए घटा जाएगा तो काम तो नहीं होगा काम तो बंद नहीं होगा लेकिन किस तरीके से गणतांत्रिक व्यक्ति भी करने डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक किस तरीके क्या करते हैं जैसे आज पहला दिन इसके बाद अपना होगा मास रिलीज करेंगे अगर हम उनको भारत सरकार नहीं देंगे तब हम लोग मास रैली करेंगे मास रैली उसके बाद
हंगर स्ट्राइक इसे का हम लोग हम लोग वो सब सारी बातें किए हैं। अगर एक पहला हम लोग का धरना दिए, इसके बाद में हम लोग अगर नहीं हुई तो हम लोग मास रैली करेंगे। मास रैली में भी नहीं होगा तो हम लोग हंगर स्ट्रीट में चलते हैं। ऐसे तो ऑल इंडिया में हम लोग का सभी पूरा मुंडा संगठन का जितनी है सभी ST में पढ़ते हैं। पर हम जितने असम में हम लोग हैं तो असम की खाली हमने मिला है, बाकी सब स्टेट में मिल गया है। तो भारत सरकार तो हम लोग को पूरा नेग्लिजेंसी कर रहा है। 77 में भी हम लोग का असम गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं दिया था। इसके बाद में और 2 दफे 93 लास्ट में भी हम लोग को रिकमेंडेशन। आदिवासी काउंसिल ऑफ असम ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? या पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे आदिवासी काउंसिल ऑफ असम सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा सुना गया है ये सब सिविल की बात अच्छे लोग करते हैं कि जब तक इसमें कोई पॉलिटिशियन हाथ ऊपर नहीं रखता है तब तक तो शायद कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि कौन से क्या कर रहा है क्या नहीं। एक साइड कर देते हैं। पॉलिटिकल कलर इसमें आप लोग ने कभी सोचा है देना है क्या क्या है उस समय आप लोगों का प्रतिक्रिया आप लोग का विचार क्या है? हम लोग का तो पॉलिटिकल कलर देने का कोई इरादा नहीं। कैसे मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसी गलत रहते रहते ही मतलब जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग का जो एम है उसी का उनका। जैसे डॉक्टर साहब ने सवाल किया था, अक्सर देखा गया है कि मतलब जो कमजोर आदमी है उसको हमेशा मतलब उसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। जब तक अपने ताकत नहीं है तो मतलब आप फसल वगैरह सब किसी का आगे किसी कोई हाथ में रहे बैठ में रहे। तो अभी आज आप लोग दिल्ली तक आए हैं, आप लीडरशिप अच्छा है आप लोग दिल्ली तक आए हैं। इधर उधर हो जाए कोई बढ़ जाए इधर उधर तो मुश्किल है। तो इस मूवमेंट को और जो तरीके से चलाने के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? जरूर सोचा है। किस तरह का भी जानना चाहते हैं हम लोग मूवमेंट अगर हम लोग का ST भारत सरकार में नहीं दी तब हम लोग असम से हम लोग दिल्ली में फिर मास रैली करने के लिए हम लोग ये किस तरह से क्लियर होगा ये सवाल? अब अभी तक जितना भी एजुकेशन हुआ धरना हुआ है दिल्ली हुआ कॉन्फ्रेंस हुआ क्योंकि पुलिस अरेस्ट वगैरह को तक काउंसिल को सामना तो नहीं करना पड़ा है। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ आज तक नहीं। देखा गया है कि बड़े बड़े जगह अगर अंदर हो जाए इसके बाद खबर के तौर पर फिर चले जाना चाहते हैं। अगर अरेस्ट हो जाए आप लोग चाह पाए नहीं कि आज में बंद कर दिया खैर वो तो कानून की बात है हम लोगों को पता नहीं। कानूनी आप सब की बात करेंगे अरेस्ट होंगे क्या होंगे हमारे राजनीति का जब और वायलेंस हो जाएगा उसके लिए भी हम लोगों ने सोचा है क्या है संविधान अधिकार जो है उसको पाने के लिए असम को शहर कंपनी ने शहर होने से भी तैयारी हुई होगा वो तो बात की बात है। मतलब अभी तो शांतिपूर्ण रूप से जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं। शांतिपूर्ण वे में मतलब
शांतिपूर्ण तरीके से जितना तक हो सके आप लोग ये सोचे अभी तक। लेकिन आप इस मूवमेंट को हरास करने के लिए, दबाने के लिए और भी आपके पीछे और मतलब किसी वगैरह पीछे पड़े हैं और भी मुख्यमंत्री साहब दूसरे भी वो इस तरह के मूवमेंट को दबाने के लिए, चलने के लिए वो भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं असम में भी या बाहर भी, वो भी देख रहे हैं किस तरह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, काउंसिल क्या कर रहा है क्या नहीं। उन लोगों को भी पता है ये नहीं ये कि बाकी और लोगों को पता नहीं। तो ये सब देखते हुए सतर्क है नहीं है, उसके लिए हम लोग का जो लीडरशिप है तो बड़ी सतर्क। इसके पहले भी हमारे असम के आदिवासी काउंसिल को दबाने के लिए सब चाह रहा है, मान भी गया था हमारे आदिवासी काउंसिल पर। हम लोग का जो आदि वर्तमान जो लीडरशिप निकले हुए हैं बहुत अच्छा लीडरशिप है, इसके लिए कि हम लोग का असम आदिवासी काउंसिल आगे जिंदा रहे। बाहर स्थित वाले मतलब ये इस एजुकेशन को मतलब इस मूवमेंट को सिर्फ असम में ही नहीं रखना है, असम से भी बाहर ले जाना है। जहाँ भी अच्छी क्या करनी उसको आपके ग्रुप में शारिक होना चाहते हैं, बिहार वाले, यूपी वाले या जो भी हैं मतलब हाँ यही होता है कि वो लोग यहाँ पर के लोग अभी तक और एक बात यह है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए या तो उसका जो मुद्दाएँ हैं या तो उसका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए, स्पेशली इन इंडिया हम लोग देश में सेंट्रल में भी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होने चाहिए या तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि वैसा लॉबी की ज़रूरत है या तो वैसा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो आप लोगों को, आप लोग यानी कि ये काउंसिल को सहायता कर सके। यहाँ दिल्ली में, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली यहाँ की राजधानी है, तो यहाँ के राजधानी होने के नाते यहाँ का जो सपोर्ट आपको चाहिए वो बहुत ही ज़रूरत है। देखो इस लक्ष्य को पाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या सोचा है, किस तरीके से आप लोग यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड यहाँ जितना भी आदिवासी का ऑर्गेनाइजेशन लोगों से हम लोग का आदिवासी जितनी हमारे भारत देश में है, चाहे दिल्ली में हो चाहे दूसरा जगह में हो, हम उनसे मिलने चाहते हैं और हम उससे सहायता भी चाहते हैं। और वो अगर हमसे भी चाहे सहायता मांगे तो हम जरूर देंगे। अभी तक आप लोग यहाँ दिल्ली में कितने ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है? दिल्ली में जो है आदिवासी यानी कि आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग के साथ लोग भी लड़ रहा है, उनका भी बहुत कार्य कर रहे हैं, वैसे कितने ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग जानते हैं जो कि काम कर रहा है? यानी कि इसको ग्लोबलाइजेशन करने के लिए या तो इंडिया से बाहर लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग सोचें
जैसे आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन यानी कि जो हम लोग का ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह है हम लोग का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो देखभाल करता है कि ह्यूमन राइट्स बरकरार रहे, हम लोग के ऊपर अत्याचार न रहे, स्पेशली आदिवासियों के ऊपर। तो हम लोग क्या नहीं चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से अपना आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा दें। इसके लिए क्या चार के किस तरीका से वहाँ तक अपना आवाज़ पहुँचाए, जिस अदालत पहुँचाए। इससे जो हमारे इंडिया में है इंटरनेशनल ट्राइबल इंडिजिनियस ग्रुप की इसी तरह से हम लोग सुनाना चाहिए। अच्छी बात है। इनका क्या आप मेंबर बने? मेंबर बन गया, बनने चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं। बनना नहीं, लेकिन उसका जो मेंबर है ये भी टूटू तो हम लोग को भी क्या हुआ है, हमारे वहाँ भी वो करते रहते हैं। असम में इसका यूनिट है, आपको असम में नॉर्थ ईस्ट जोन है। ये ICIPC क्या ही इसके बारे में आपको पता? वैक्सीन का और क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्ट है, सिर्फ पूरी तो आप लोगों को इनपुट करने के बाद इसका आगे क्या प्रोग्राम है। socio-cultural side of the Adivasis. And thirdly, to organize sports such as archery competition, so forth. These are the main objects. What are you doing for cultural development or cultural promotion of the tribal society through the organization, through the township? Now we are holding cultural competition, dances, Competition. cultural competition, dances, singing songs. Actually, we are trying first experimental basis. Somehow we are trying to dress the central almost all the district women wear even educated women just as we have 50% less main problem is we want to unify our cultural presence for if we dress एक तो बीच में dance तो okay, dance is no problem, women represent इसी समाज में संतल लोग के बीच में ये ऑर्गेनाइज हो गया है, but among the movements we are trying but to just trying हम लोग का अगर कल्चरल ट्रेडिशनल ड्रेस हो वुमेन महिला हो तो आप लोग ये इसी को स्टार्ट करें मेन इम्प्लीमेंट करने होगा, इम्प्लीमेंट करने होगा, इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा, इम्प्लीमेंट बिना तो नहीं होगा, ये नॉन रेगुलेटरी क्या करना होगा।
ये संस्था काउंसिल कब रजिस्टर हुआ है? हाँ? लेकिन मूवमेंट पहले से चला आ रहा है इसी बैनर के अंदर है। और आज तक यानी कि अब तक कोई कल्चरल प्रोग्राम या तो ऐसा जो धरना आज हम लोगों ने किया यहाँ, वैसा और कहाँ हुआ? आसाम से बाहर और किए हैं? आसाम से बाहर नहीं, दिल्ली में ही। कंपटीशन तो वही करने वाला आसाम संताल से आसाम संताल से ना थ्रू आसाम संताल से। तो वो लोग क्या मतलब देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या उनका रिएक्शन क्या है? उन लोग बोल रहा है कि आप लोग हम लोग आपत्ति हम लोग नहीं है, और वो लोग आज तक आपत्ति कुछ नहीं का शेड्यूल जो है हम लोग का मैंने एगेंस्ट में अभी तक वैसा नहीं दिखाया, तो लोग सपोर्ट में है अब तक। तो वो सपोर्ट मतलब किस तरह का मोरल सपोर्ट पीछे पे ऐसा तो सुनने में नहीं आया कि इस मूवमेंट को वो दबाना चाहता है, वैसा तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा ना? ये नहीं, वैसा तो अब तक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं सुना है। तो हम लोग का ख्याल से उन लोग का जो ट्रैफिक क्या वो और हम बीच में कोई मतलब ऐसा वैसा होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर वैसा होने का होता तो जब हम लोग आदिवासी काउंसिल का ऑर्गेनाइज करता तभी कहीं ना छूट पीट मतलब कोई ऐसा बुरी बात निकल ही जाता। मतलब इसलिए है कि मतलब वो आप लोगों को दुश्मन नहीं समझते। बात तो ये है कि उधर जो शेड्यूल है वो लोग पूरे जानते हैं कि हम लोग भी शेड्यूल ये दूसरे देश में शेड्यूल है, इसलिए वो लोग कोई अभी तक बाधा नहीं दिया है और कोई स्थिति भी नहीं जाता। हम लोग ऐसे ही टैग ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, जैसे आस्था और हम लोग का असम का हाँ आंसू ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब हम लोग को मोरल सपोर्ट मिले। ठीक, अभी टाइम भी हो गया, हम लोग चलेंगे। लास्ट में मैं एक संस्था के ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शाबाश देना चाहूँगा कि हम लोग एक संस्था से करते हैं, मैं स्वास्थ्य क्योंकि हम लोग ने देखा है आप लोग हमारे भाई हैं, बना दूर मतलब कम से कम 10-15 दिन घर से बाहर आए हैं, इतना दुख हम लोगों को लग रहा है। खैर हम लोग को पहले से पता है कि आप लोग से नहीं हो रहे हैं, तो इस मूवमेंट को दिल्ली का जो भी काम होगा आप लोग और भी हमारा आदिवासी इस तरीके से ये काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम लोग जितना अपने से हो सकेगा हमारे संस्था की ओर से, बाकी और कोई खबर करेंगे इसके बाद कि आप लोग दोबारा बना जाए, बाकी यहाँ का जितना करेंगे और एक ना एक दिन हम लोग सांस लेंगे, ये आश्वासन देना चाहते हैं। बाकी इस मूवमेंट को जहाँ तक मैं समझता हूँ मतलब ये हताश होकर नहीं, ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है दिल्ली में, लोग पहला नहीं मतलब दिल्ली में तो अभी कोई मतलब रैली होगा ये होगा, और ये मतलब सही बात है कि मतलब हम लोग आए जाना चाहिए। हाँ भाई उस वजह से भी लोग ऐसी बात बहुत अगड़ा पकड़ा आए, गवर्नमेंट का बिल भी आया हुआ है, 1 आध साल लगे 2 साल लगे, फिर हम लोग साथ देंगे, बाकी और कोई
साल में कोशिश करेंगे। बाकी हम यही कामना करेंगे जैसे साहब ने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इसी तरह के ही आप लोग साथ करें और भी यहाँ से भी सफल होते जाइए कि हम लोग तो वही कि आप लोग पीछे पड़ जाएंगे तो जितना भी हम लोग बाहर वाले हैं हम लोग ऑटोमेटिक और भी पीछे आ गए पूरा जनता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग कभी वो नहीं बनेंगे। हम लोग नहीं सकेंगे तो हमारा बच्चे जरूर सकेंगे। हाँ कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा इसके लिए हमारे असम आदिवासी काउंसिल तरफ से आपको ये आपकी संस्था के लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोग ये दिल्ली में आगे भी हमको इसी लोग का सहयोग चाहिए और देते रहना और हमारा पूरा आपसे सहायता मिलेगा यही हमारी आशा है। बीच में आपको जना दिए बीच में मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। इन कंपैरिजन टू अदर ट्राइब्स हम लोग अपना दिस नहीं किया है अब तक क्योंकि जो बोडो ट्राइब्स जो है वो लोग अपना हक या अधिकार पाने के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन किया है। इस तरह से हम लोग को हम लोग का जो संगठन को और कष्ट कर दिया और आज अगर यहाँ 2 दिन ठहरना पड़ा तो कल हम लोग 1 हफ्ता ठहरने के लिए हम इकट्ठा होना चाहिए। और जैसे आप लोग का भी जो जैसा सहयोग मिला है इसलिए हम लोग बहुत आभारी है। इसलिए हम लोग की तरफ से आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग वहीं
भैया जमर जमर बबड़